Very good morning to all of you, beta. I hope you all are fine and welcome to the social science class. I hope you have enjoyed the festival. Now, come to the topic. Let's start the remaining part of the chapter 5, beta. Architecture as power, forts, and sacred places. See the last part of this chapter, beta. In this, we will discuss about the Mughal architecture, architectural innovations in Mughal period, and sharing of ideas. So let us start, beta. The first one is Mughal architecture. See, beta, in this, the Mughal built many forts, palaces, mosques, gardens, baulis, public buildings, etc. And this period saw architecture at its zenith. Zenith means the highest point, beta, both in terms of number and the style. Then that means कि मुगल्स के टाइम में जो आर्किटेक्चर की फॉर्म आपको देखने को मिलेगी उन टर्म्स ऑफ नंबर इन सेंस की बहुत ज़्यादा मॉस्क्यूज गार्डन पैलेसेस एंड फोर्ट्स बने एंड स्टाइल ऑल्सो मुगल आर्किटेक्चर ब्लेंडेड द पर्सियन एंड द इंडियन स्टाइल्स दोनों स्टाइल्स को फॉलो किया बेटा सी बाबर बिल्ट मैनी पैलेसेस एट आगरा सीकरी एंड धौलपुर एंड ही बिल्ट द मॉस्क्यूज इन काबली बाग इन पानीपत even Panipat and the Jama Masjid at Sambal. And both these mosques exist even today, beta. And Babur also introduced the concept of garden palaces in India. After this, beta, see, Sher Shah completed the construction of the Purana Killa at Delhi, and his tomb is Sarsram in Bihar, is situated in the middle of a lake. It has a very huge dome. शेर शाह ने भी बेटा कंस्ट्रक्शन पूरी की थी पुराना किला की दिल्ली में एंड उसके वहाँ भी जो टॉम बनाया गया था इट हैज़ अ वेरी ह्यूज डॉम एंड द रीन ऑफ अकबर सा द फ्यूजन ऑफ पर्सियन सेंट्रल एशियन एंड द इंडियन स्टाइल्स ऑफ द आर्किटेक्चर इन दिस स्टाइल बेटा is reflected in the buildings of Fatehpur Sikri, the new capital that Akbar built new near Agra, and the Buland Darwaza, the palace of Birbal, Jodhabai Palace, and the Panch Mahal are all built in the red sandstone, and only the tomb of Sheikh Salim Chishti is built of वाइट मार्बल दैट मीन्स बेटा जो भी चीज़ें जो इनके फ्यूजन में बनी हुई जस्ट लाइक फ्यूजन मीन्स मिक्सअप पर्सियन और सेंट्रल एशियन और इंडियन स्टाइल का आर्किटेक्चर मिक्स किया गया था and as in this beta Akbar also built many forts palaces and the tombs also he built the Agra fort on the banks of the Yamuna river and the fort is protected by a high wall made of red sandstone बेटा it has two gateways बहुत बड़े बड़े two gates थे and one each on its southern and western sides inside the Agra fort is a beautiful Jahangiri Mahal आगरा फोर्ट में हम जाते हैं उसके अंदर एक बहुत सुंदर जहांगीरी महल है बेटा इट हैज़ अदर मॉन्यूमेंट्स विच वर लेटर एडेड बाय एम्परर शाहजहाँ ऑल्सो एंड प्रोमिनेंट एमंग देम आर द खास महल मोती मस्जिद and the Diwan-e-Aam and these differ from the monuments built during Akbar's times as this were built in the marble. So after this beta in some examples of the architectural style of this period. See beta we can say Humayun's tomb in Delhi is another example of architectural style of this period and the tomb is built on raised on a high platform and is situated in the middle of a garden and the tomb has a blend of both Indian and Persian architecture but again this point is repeated that during the same time Mughal styles influenced the temple and architecture of Hindu rulers and the Govind Dev temple at Vrindavan is also made of red sandstone beta see some examples like Moti Masjid खास महल दीवाने आम हुमायूं's tomb गोविंद देव टेम्पल इन वृंदावन आगरा फोर्ट पंच महल बीरबल जोधाबाई's पैलेस एंड बुलंद दरवाजा फोर मीनारेट्स एंड वाइट मार्बल दैट मीन्स जो पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें जो बनाई गई थी मेन टॉम्ब वाइट मार्बल से बनाए गए कुछ रेड सैंडस्टोन से बनाए गए एंड द टॉम्ब ऑफ इतमदुल्ला एट आगरा वाज ऑल्सो बिल्ट बाय द जहांगीर
Aurangzeb beta did not take much interest in the art and the architecture. During his reign, Mughal architecture declined, and many buildings constructed during his reign, Mughal architecture declined, and many buildings constructed were just copies of earlier ones. कुछ जो building उसने की वो just copy की हुई थी जो पुरानी buildings की. They also lacked the sense of proportion and attention that the buildings of Mughal rulers depicted. That means उनके अंदर इतनी proportion का या इतना उन्होंने उन buildings को बनाने में अपनी attention नहीं दी जितना कि at present जितना कि मुगल्स के अकबर ने, शाहजहाँ या जहांगीर ने जो बिल्डिंग्स बनाई थी उसमें देखने को मिलता है हमें. आफ्टर दिस बेटा आर्किटेक्चरल इनोवेशन इज इन द मुगल पीरियड. सी बाबर डिस्क्राइब्स हिज इंटरेस्ट इन लेइंग आउट गार्डन्स. बाबर का इंटरेस्ट किस में था? गार्डन्स में. प्लेस्ड विद एन रेक्टेंगुलर वॉल इन क्लोजर्स and divided into 4 quarters by artificial channels. These gardens were called Chahar Bagh, and these gardens were called Chahar Baghs because of their symmetrical division into 4 quarters. बेटा बाबर का जो इंटरेस्ट देखने को मिलता है, अलग अलग गार्डन्स बनाए उसने, रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर थे जिन्हें 4 पार्ट्स में आर्टिफिशियल चैनल्स में डिवाइड किया गया था. एंड दीज गार्डन्स को क्या कहा जाता था? चहार बाग. और क्यों कहते थे? बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन, क्योंकि इनका जो डिवीजन था बिल्कुल सिमेट्रिकल फॉर्म में किया गया था. सी चहार बाग वॉज बिल्ट बाय अकबर, जहांगीर एंड शाहजहाँ ऑल्सो. Akbar, Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi. Examples can be given of Charbagh in Humayun's tomb, Delhi, Terrace Charbagh at Shalimar Gardens, Kashmir, and the Chaharbagh adopted as a riverfront garden at the Lal Mahal, Bari. See, but there were many examples. Architectural innovations were shown there, and the central towering dome and the tall gateway became more important aspect of the मुगल आर्किटेक्चर. सबसे मेन पार्ट था कि उनका मेन टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे, बहुत बड़े बड़े गेट्स. एंड दिस टॉम इन दिस बेटा इन हुमायूंस टॉम was placed in the center is a huge formal chaharbagh and built in a tradition called हश्ट बिश्ट. मुगल्स ने जो एक नया ट्रेडिशन बनाया था बेटा जिसे नेम दिया हश्ट बिश्ट. हश्ट बिश्ट मीन्स 8 पैराडाइज, जिसके अंदर क्या था? ए सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स. एक सेंट्रल हॉल था जो चारों तरफ से 8 रूम से कवर्ड था. एंड द हुमायूंस टॉम वाज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज्ड विद वाइट मार्बल ऑल्सो. एंड द सेरेमनियल हॉल्स, जो सेरेमनी के लिए हॉल्स बनाए गए थे ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस. फॉर पब्लिक दीवाने आम एंड फॉर प्राइवेट ऑडियंस दिस इज दीवाने खास. दीवाने आम मीन्स आम पब्लिक के लिए एंड प्राइवेट ऑडियंस के लिए दीवाने खास, जो स्पेसिफिकली लोगों के लिए बहुत केयरफुली प्लान किए गए थे. दे वर प्लेस्ड विद इन ए लार्ज कोर्ट यार्ड एंड दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड एज चिहिल सुतन और 40 पिलर्ड हॉल्स. वी कैन से द 40 पिलर्ड हॉल्स की जो 40 पिलर 40 पिलर का जो हॉल बनाया गया था. दिस वॉज कॉल्ड द दीवाने आम एंड द दीवाने खास. बेटा यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दीवाने आम एंड दीवाने खास हेयर. नाउ सी बेटा शाहजहाँ ऑडियंस हॉल्स वेरी स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क्यू. जो शाहजहाँ की ऑडियंस के लिए हॉल बनाए गए थे स्पेसिफिकली ऐसे देखने में लगते थे जस्ट लाइक मॉस्क्यू. एंड द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला. पर्टिकुलरली जहाँ उसकी पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंग जो उसे डिस्क्राइब किया गया बेटा एज द किबला एंड डायरेक्शन फेस्ड बाय द मुस्लिम्स एट प्रेयर बिकॉज द ऑडियंस फेस द डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन. बेटा एट दैट टाइम मुस्लिम जब प्रेयर करते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है, उनका जो मेन प्लेस है मक्का, उसकी साइड वेस्ट साइड ऑफ द इंडिया के वेस्ट साइड में डायरेक्शन होती है. तो उसकी ऑडियंस का फेस भी डायरेक्शन भी उसी फॉर्म में रहता था जस्ट लाइक जैसे गॉड के लिए, भगवान के लिए, उनके अपने ऑनर के लिए मॉस्क्यू में होता है, वैसा ही उनका फेस उसी साइड रहता था जब उनके कोर्ट का सेशन होता था. इनफैक्ट these features were suggestive of the idea of the king as a representative of God on the
अर्थ, कि ये माना जाता है कि किंग एक तरीके से उनके लिए भगवान की तरह, जैसे भगवान की तरफ वो मुंह करके बैठते थे, उस साइड फेस करके प्रेयर करते थे, जस्ट लाइक दैट अपने किंग अपने रूलर की तरफ भी वो फेस करके बैठा करते थे. सी, शाहजहां कोर्ट इन द रेड फोर्ट एम्फसाइज द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट. And behind the emperor's throne were a series of pietra dura. What is pietra dura beta? Means colored stones placed in the depression carved in the marble or sandstone, creating beautiful ornate पैटर्न्स. दैट मीन्स जहाँ राजा बैठा करता था, एम्पर की जो पोजीशन होती थी उसके जस्ट बैक साइड में पिएट्रा ड्यूरा मतलब कलर्ड स्टोन से कार्व किया हुआ, पीछे बहुत सुंदर कार्विंग की हुई एक वॉल बनाई जाती थी कलर्ड ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स के साथ. And this aimed to communicate the message that the king's justice would treat the high and the low as equals and all would live in harmony. That means क्या है कि जो राजा को वहाँ बिठाने का मकसद क्या था बेटा, एक मैसेज क्या कम्युनिकेट होता है कि राजा जो है जज करेगा सबको, किसी को हाई किसी को लो नहीं करेगा, सबको इक्वली जज करेगा, एंड ऑल वुड लिव इन हारमनी. एंड द चहारबाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन ऑफ द रिवर फ्रंट गार्डन बेटा. रिवर फ्रंट गार्डन दैट मीन्स जितने भी चहारबाग गार्डन थे वो रिवर फ्रंट गार्डन की वेरिएशन पे बनाए गए थे. दैट मीन्स हेयर द मॉन्यूमेंट वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चहारबाग बट एट इट्स एज क्लोज टू द bank of a river. See, Shahjahan adopted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal also. Here the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was placed to its south. यहाँ जो वाइट मार्बल बेटा यूज़ किया गया है प्लेस्ड ऑन द, ये कहाँ से ले गया, रिवर के एज के वहाँ से ले जाके गार्डन में भी सेम प्लेस किया गया इन द साउथ ऑल्सो. एंड शाहजहाँ डेवलप्ड दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज अ मीन्स टू control the access that nobles had to the river. And in शाहजहानाबाद बेटा to the imperial palace command the river front. शाहजहानाबाद में भी जो imperial palace बनाया गया था वो भी river front में ही बनाया गया था. एंड नोबल्स बिल्ट होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना. और नोबल्स को रिवर के बिल्कुल डिफरेंट साइड पे परमिशन दी गई थी कि वो वहाँ बिल्कुल राजा के जो फोर्ट्स थे उनसे बहुत दूर सिटी में जाके अपने घर बना सकते हैं. सी द लास्ट टॉपिक इज बेटा शेयरिंग ऑफ आइडियाज़. In this, the architectural traditions and concepts of one region were adopted by another in the medieval period. And in Vijayanagar, the style of elephant stables was influenced by the architecture found in sultanates of Golconda and the बीजापुर. सी बेटा इन दिस जो आइडियाज़ थे जस्ट लाइक मिडीवियल पीरियड के जो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन से लिए उसके बारे में बताया गया. लाइक इन विजयनगर, लाइक इन गोलकोंडा एंड बीजापुर, एंड इन वृंदावन टेम्पल्स वर बिल्ट इन सिमिलर स्टाइल ऑफ द मुगल पैलेसेस. इन फतेहपुर सीकरी मुगल रूलर्स वर particularly skilled in adapting regional architectural structures in their buildings. For example, Mughals adapted the Bangla Dome from Bengal क्योंकि इंडियन कल्चर, पर्शियन कल्चर और सेंट्रल कल्चर उन्होंने मिक्स किया था. एंड मैनी बिल्डिंग्स ऑफ फतेहपुर सीकरी एग्जिबिटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ द गुजरात एंड द मालवा. सो दिस वॉज योर चैप्टर बेटा. नाउ दिस इज ओवर. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.